Welcome to Maths class, and today we'll do playing with construction. A ruler is a straight edge used to draw the major line segment. The divider is a pair of pointer used to compare the line segment. Divider का हम line segment को compare करने के लिए use करते हैं and ruler को line को draw करने के लिए, line segment को draw करने के लिए. A compass is a pair of pointer on one end and pencil on the other end. The semicircular device which is used to draw and measure angles is called protractor. Set square is a set of two triangular pieces. One of them is 90 degree, 45 degree angles at the vertices, and the other is at 90 degree, 60 degree and 30 degree angles at the vertices. It is used to draw perpendiculars and parallel lines. So all these devices you will get in your geometry box. ये हम geometry में use करते हैं. Ruler, divided, compass, protractor, set square. ये सब हमारे geometry में अलग अलग चीज़ों के लिए use होता है. Start with introduction. We need to measure length, breadth and height of the different things in a day-to-day life. Sometimes we need to measure angles to draw the geometrical figure or the construction, a model of a building, bridge, etc. So we need to draw the perpendicular. We need many geometrical instruments for this purpose, like we need ruler, divider, compass, protractor, set square, etc. So first, ruler. Ruler क्या होती है? Ruler is a straight edge. One edge is marked the centimeter and other edge marked with the inches as shown in the figure given below. So इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में होगा. स्ट्रेट एजेस होंगी, एक साइड पे सेंटीमीटर में मार्क होगा एंड अदर साइड पे इंचेस में. इसका यूज हम करते हैं लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने के लिए. नेक्स्ट इज डिवाइडेड. सो दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट हैव द पेयर ऑफ पॉइंटर, दो पॉइंटेड साइड होंगी. क्लियर? It is used to compare the line segment. Next is compasses. Compass is a pair of pointer on one end and the pencil on the other end. एक साइड में जो होगी नीडल टिप होगी एंड दूसरे में जो होगी हम पेंसिल फिट करेंगे. Next is protractor. It is a semicircular device graduation into 180 degree part. The measures start from 0 degree right hand side and end with 180 degree on the left hand side and vice versa. सो इस तरीके का एक सेमी सर्कुलर डिवाइस होगा जिसका हम एंगल्स को ड्रॉ करने के लिए यूज होते हैं. इस पे दो स्केल होगी, 0 to 180 डिग्री आउटर स्केल क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 0 to 180 डिग्री इनर स्केल 1 जो होगी एंटी क्लॉकवाइज. नेक्स्ट इज सेट स्क्वायर. इट इज सेट ऑफ टू ट्राइंगुलर पीसेस. टू ट्राइंगुलर पीसेस होंगे, वन ऑफ देम जिसपे 90, 45 एंड 45 डिग्री के एंगल्स होंगे एट द वर्टिसेस and the other has 90, 60 and 30 degree angle at vertices. It is used to draw perpendiculars and parallel lines. Clear? Next is construction of line segment. To draw the line segment of 6.5 centimeter. अगर हमें 6.5 centimeter का line segment draw करना है, we can draw the line segment in two ways, by using ruler or by using compasses. सबसे पहले हम ruler का use करते हैं. So what we'll do? We will mark, copy लेंगे, उसमें एक point mark करेंगे M. Now we'll place the ruler such a way, जो जीरो है वो कहाँ पे आए? पॉइंट M पे. Like here you can see. Clear? Now move the sharp edge of the pencil along the edge of the ruler till we reaches the point जहाँ पे भी 6.5 सेंटीमीटर का होगा वहाँ पे हम पॉइंट कर देंगे. Clear? That is the point N. Now we'll join the point M and N. So that is our required line segment. Next, by using compasses. For that, draw a line L and mark P point on it. एक line draw करेंगे, उस पर एक mark करेंगे point P. Now, we will place the compasses pointer 0 degree mark of the ruler and open the arm to place the pencil pointer 6.5 centimeter. इस तरीके से stretch करेंगे 0 से 6.5 centimeter. Clear? एक point हो जाएगा 0 पे and we'll stretch the other arm till 6.5. Now, lift the compasses without disturbing, बिना disturb किए बिना. Now I'll put the pointer of the compass at P and जो दूसरा point है वो कहाँ पे आता है उसको मार्क करेंगे, that is Q point. So वो हमारा required line segment हो जाएगा. Next, construction of circle. Draw a circle of radius 2.8 centimeter. 2.8 centimeter का हमें radius का circle draw करना है. सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंपास की जो आर्म है उससे हम मेजर करेंगे रूलर की हेल्प से 2.8 सेंटीमीटर. क्लियर? जो नीडल टिप है हमने यहाँ पे एक पॉइंट पे रख दी एंड विल स्ट्रेच जो पेंसिल वाली आर्म है उसको 2.8 तक. नाउ वी विल मार्क द पॉइंट O ऑन द पेपर. विल पुट द नीडल वाला जो होगा
उसको हम फिक्स करेंगे O पॉइंट पे. नाउ विल रोटेट द अदर आर्म, जो पेंसिल वाली है, अराउंड इट. जो हमारा सर्कल बनेगा दैट इज ऑफ द required radius 2.8 centimeter. Next is evolution time 8.1. Draw the segment, line segment 4.6 centimeter. So हमें रूलर का यूज करना है, प्लेस करना है, एक पॉइंट मार्क करना है 0 पे एंड दूसरा 4.6 पे, उसको ज्वाइन कर देंगे. दैट इज आवर रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट. नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स. कैसे हम स्क्वायर और रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे. एग्जाम्पल लेते हैं. कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर HOPE होप इन विच ईच साइड इज 6 सेंटीमीटर. स्क्वायर में ऑल 4 साइड्स इक्वल होती है, हमें 6 सेंटीमीटर की दे रखी है. सो सबसे पहले हम एक रफ स्केच बनाएंगे सो दैट वी विल गेट आइडिया कि किस तरीके से हमारा स्क्वायर जो है वो बनेगा. सो एज वी नो दैट द ऑल साइड स्क्वायर्स आर इक्वल एंड ईच एडजेसेंट एंगल इज राइट एंगल. HOPE 6 सेंटीमीटर है, एंगल HO और E 90 डिग्री, ये हमें पता है. अब हम स्टेप्स देखते हैं कंस्ट्रक्शन के. सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे EP 6 सेंटीमीटर का. क्लियर, हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया 6 सेंटीमीटर का. नाउ P पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. यहाँ पे हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया. क्लियर क्लियर. नाउ ड्रॉ एन आर्क रेडियस 6 सेंटीमीटर एंगल विद द कट्स एट O. अब हम यहाँ पे रख के एक 6 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे जो इसको O पॉइंट पे कट करेगा. क्लियर. नाउ टेक O एज अ सेंटर, हम एक और आर्क बनाएंगे 6 सेंटीमीटर की. क्लियर. नाउ टेकिंग E एज अ सेंटर, E को सेंटर लेके हम एक और आर्क बनाएंगे 6 सेंटीमीटर पे. नाउ विल जॉइन दीज पॉइंट्स. ये हमारा बन जाएगा स्क्वायर HOPE और जो हमें रिक्वायर्ड था. क्लियर. सो इस तरीके से हम बनाएंगे. नेक्स्ट इज एवोल्यूशन टाइम 8.2. कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर हुज ईच साइड इज 5.5 सेंटीमीटर. स्क्वायर ड्रॉ करना, ऑल 4 साइड्स इक्वल हैं. हम एक रफ स्केच बना देते हैं. ऑल साइड 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 एंड 5.5. ऑल एंगल्स ये हो जाएंगे 90 डिग्री. क्लियर, दैट वी नो. सो सबसे पहले हम एक DC बनाएंगे 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर. यहाँ पे हम एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे. C को रख के 5.5 सेंटीमीटर के आर्क बनाएंगे, दैट इज पॉइंट B. अब हम B पे रख के एक 5.5 सेंटीमीटर की एंड D पे रख के 5.7 सेंटीमीटर के आर्क बनाएंगे, दैट इज अ पॉइंट A. सो ये हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर हो जाएगा. इस तरीके से ड्रॉ करना है. नेक्स्ट इज मेंटल जोन. टू ड्रॉ द लाइन सेगमेंट वी यूज रूलर. नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. टिक द करेक्ट ऑप्शन. द डिवाइडर हैज, जो डिवाइडर होता है उसमें क्या होते हैं, डिवाइडर हैज 2 pointed ends. So B is the correct option here. Here we end the chapter. I hope chapter आपको समझ में आ गया है. Now to practice it.